Good evening to all. Good evening, sir. 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 Okay, in the Good last evening, sir. last lecture we have started into transmission of power. So in last lecture we have seen the function of belt drive, chain drive, and rope drive. Now we are going to study gear drive. So might be you all have seen the gear drive. What is the shape of the gear drive? What is the shape of gear drive? Can anyone can explain what is the actual geometry, or we can say what the gear drive look like? How it is look like? Circle, rectangle, rod. How it is look like? Sir, circle. So circle. Circular, circular. So Yes, sir. many of us might have known that the the rod which we are shifting in the car is the gear. That is not gear. That is gear lever. वो गियर पावर ट्रांसमिशन का लीवर है, ठीक है, वो लीवर है, वो जिसको शिफ्ट करता है अंदर, उसको बोलते हैं गियर्स. अब वो गियर्स कैसे होते हैं, कैसे पावर ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हमने अभी इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट इन ओपन बेल ड्राइव द रोटेशन एट इनपुट, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट इनपुट and output both are same for open belt drive. Okay, for cross belt drive, if you are giving the direction here clockwise, then you will get anti-clockwise in output drive, output disk. Okay, and if this is driver, then this will be driven. Okay, so driver will be rotated by some external source like motor, and driven will be situated with machine which is going to be rotated by using power transmission methods. Okay, but you have to remember that what kind of direction you are requiring. Means do you want the same direction of rotation as a motor at the output shaft, or you want opposite direction at the output shaft? So on the basis of that you can choose from open belt drive and cross belt drive, right? So at the same way we are going to see the gear drive in the lecture number 23. Okay, so we will see the gear drive. So the different types of gears are there. So first is spur gear, helical gear, spiral gear, bevel gear, worm and worm wheel gear, and then rack and pinion gears. And each and every gears are having different applications. So let's start with the spur gear. Just see and think about what type of gear it is and what kind of disadvantage of that. Disadvantage means not disadvantage, actually limitation of that type of spur gears. So if you have studied the forces, impact forces, gradual forces, then you can distinguish between the spur gear and helical gears and so many other gears. Okay, so let's start with the spur gear. So as you can see that there is a hole you can see, cylindrical hole. Why these cylindrical hole are there? Why these cylindrical holes? To insert what? These are gears. This is also a gear. Gear are having teeth. You can see teeth on the periphery. Can you see that? Yes, sir. So Yes, sir. whenever two gears are going to be in contact, the size and shape of the teeth must be same. Geometry must be same.
but the number of teeth will be different, right? The bigger gear will have more number of teeth and smaller one will be have lesser number of teeth, right? जब सेम ज्योमेट्री होगा तभी दोनों के बीच में कांटेक्ट अच्छे से होगा. Am I right? जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है उसमें इस वाले गियर का टिथ इंसर्ट होना है, तो सेम टाइप का स्पेस होना चाहिए और एट द सेम टाइम इसका टिथ इसके गैप में जाने वाला है. ठीक है, टूथ स्पेस बोलते हैं उसको, जो खाली जगह है उसको बोलते हैं टूथ स्पेस, और जो टिथ है उसको तो टूथ बोलेंगे ही. तो टूथ दूसरे वाले गियर के टूथ स्पेस में जाता है और दूसरे वाले का टूथ दूसरे वाले के टूथ स्पेस में जाता है. तो वी शुड हैव द सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री फॉर बोथ द गियर्स विच आर गोइंग टू बी मीट, which are going to be mesh. In terms of the gear power transmission, this phenomena is known as meshing. Meshing means two gears are going to be meet, okay, to provide power transmission. Why these holes, cylindrical holes are there? Why these cylindrical holes are there on both the gears? Anyone please? For connecting rod. टू कनेक्ट द शाफ्ट. ऑब्वियसली इसमें हम शाफ्ट लगाएंगे, सर्कुलर शाफ्ट होंगे इसमें, इसमें और इसमें. यहाँ बाहर निकला होगा, इधर से बाहर निकला होगा. हमको तो शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट करना है ना. इस शाफ्ट पे हमने गियर लगा दिया बड़ा वाला और इस शाफ्ट पे लगा दिया छोटा वाला गियर. सपोज हमने इस शाफ्ट के साथ मोटर को जोड़ दिया है, मोटर ने शाफ्ट को रोटेट किया, शाफ्ट ने गियर को रोटेट किया, गियर ने दूसरे वाले गियर को रोटेट किया. ठीक है, तो ये बताइए कौन सा गियर की स्पीड ज्यादा होगी? सर स्मॉल गियर. स्मॉल गियर की स्पीड ज्यादा होगी. बट एक चीज और देखने की बात है, अगर ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, इफ दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सेकंड गियर विल रोटेट इन व्हिच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉक. ये सभी लोगों को फील हो पा रहा है या नहीं? गियर का टूथ नहीं बनाएंगे आप लोग, बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. So we are not going to make the tooth on the gear. You can draw freehand sketching also. You just draw the circular shape. Two circular shapes are there. The shaft is there at the center. If this is going to be rotated in clockwise direction, the tooth of this gear, first one, is going to rotate second gear in this direction, right? Clockwise. Sorry, anti-clockwise. आ रही बात समझ में? Yes sir. देखिए Yes, ऐसा sir. कुछ टूथ है, ये कोई बड़ा सा गियर है, ठीक है, उसका मैंने एक टूथ दिखाया है. जो दूसरा गियर होगा उसका टूथ कहाँ होगा? ऊपर होगा कहीं, और ये सर्कल होगा. तो जब ये ऐसे रोटेट करके इस पे फोर्स लगाएगा तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा. ये ऐसे रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. सो इट इज जस्ट लाइक क्रॉस बेल्ट ड्राइव, राइट? क्रॉस बेल्ट ड्राइव समझ में आ रहा है? एक टिथ दूसरे टिथ को पुश करेगा तो कैसे रोटेट करेगा? वो जस्ट अपोजिट. ओके, दैट मीन्स अगर दो गियर एक साथ मेश हो रहे हैं साइड बाय साइड, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी अपोजिट. ओके, if it is clockwise then this will be anti-clockwise. Okay, now you are going to see some the definition of the spur gear. The teeth of the spur gears are cut on the circumference of the cylindrical disc. Initially these both are a cylindrical disc. And by using several machining operation we are going to make teeth on the periphery, circumference of the disc. So and these teeth are parallel to the axis of the shaft. Can you imagine that? The teeth are parallel to the axis of the shaft. Can you imagine? Teeth are parallel to axis. Yes sir. Okay. Yes. It can transmit higher power because of the contact between the mating gears is along axis of the gear.
देखिए टॉर्क हमें मैक्सिमम कब मिलता है, अगर कोई सर्कुलर डिस्क है, अगर इस पे फोर्स ऐसे आए डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, फोर्स ऐसे लगा रहा हूं मैं, ये रेडियस है, तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा। टॉर्क ज्यादा होगा तो पावर आपको मैंने बताया था 2π×10⁻60, तो टॉर्क ज्यादा है, देन यू विल गेट मोर पावर। ओके ओके, can you imagine that the first gear is going to rotate the second gear by applying a force on the circumference by its own teeth to the second gear's teeth। समझ में आ रहा है? दूसरे वाले टिथ को टकराएगा तो नीचे लेके जाएगा उसको, ठीक है। Now you can see that axes are parallel and non-intersecting. The axis must be the parallel in spur gear. Axis, दोनों axis क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। Yes. Use the transmitting the power between two shafts when the axis of driving and driven shafts are parallel and coplanar। एक ही प्लेन में है दोनों, एक ही प्लेन में दोनों एक्सिस हैं या नहीं, एक ही प्लेन में है ना दोनों एक्सिस। एक एक्सिस ऐसा है, एक एक्सिस ऐसा है, एक इस पे गियर है और एक दूसरा इस पे गियर है, तो दोनों के एक्सिस एक ही प्लेन में है। ओके, मशीन दीज आर यूज इन द मशीन टूल्स एंड ऑटोमोबाइल गियर्स। ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स में गियर, ये वाले गियर यूज किए जाते हैं। ओके, बट देयर इज अ वन डिसएडवांटेज दैट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूथ आर इम्पैक्ट, ये अचानक से टकराएंगे, ठीक है, ग्रेजुअली कांटेक्ट नहीं आने वाला है, इंपैक्ट के साथ टकराएंगे। ये आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं, इंपैक्ट के साथ ये कोलाइड करेंगे। जो ड्राइवर का गियर है, ड्राइवर का जो टूथ है, ड्रिवन के टूथ से कोलाइड करेगा विथ एन इंपैक्ट, तो द इंपैक्ट फोर्स आर मोर डेंजरस, मोर हार्मफुल देन ग्रेजुअल लोडिंग। आराम से धीरे धीरे फोर्स में इंक्रीज करता जा रहा हूं, वो उसमें जो फेलियर होगा वो, और जो इम्पैक्ट के साथ अगर फोर्स लगाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। जब इम्पैक्ट के साथ फोर्स लगाएंगे तो फ्रैक्चर अचानक से भी हो सकता है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। दैट्स व्हाई दीज गियर्स आर यूजिंग इन द फर्स्ट गियर ऑफ द एनी व्हीकल्स। द फर्स्ट गियर, तो पहला गियर होता है, दूसरा गियर होता है, तीसरा गियर होता है, उसमें जो सबसे मिनिमम वाले गियर होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं स्पर गियर्स। ओके, कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू give me the answer that which gear will be larger, the first gear or fifth gear? The size of the gear which is going to be used for speed changing of the vehicle, for first gear what is the size, and for fifth gear what is the size, what is the relation between both? The size of the gear, size of the gear means diameter of the gear। सर फर्स्ट का ज्यादा होगा, सर फर्स्ट का ज्यादा होगा, डायामीटर ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट गियर बड़ी होगी, जो फिफ्थ गियर होगी वो छोटी होगी, राइट। तो ये आप लोग मोशन देख सकते हैं, देख रहे हैं बड़ा गियर कितना धीरे धीरे घूम रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब आप देख रहे होंगे ये जो, सपोज मैं इसको ड्राइवर बोलता हूँ, इसको ड्राइवर DVR, इसको एंड दिस इज DVN, ड्रिवन। ओके, सो फर्स्टली कौन सा गियर पहले सबसे पहले रोटेट करेगा? मान लीजिए अभी ये Sir, DVR, ड्राइवर में मोटर लगाया हमने, इसको रोटेट कराया मोटर से। अब ये सपोज ये वाला टूथ है, अब ये आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है और इसको फोर्स लगाया इधर, तो ऐसे रोटेट करने लगा ये, ठीक है, ये रोटेट ऐसे कर रहा था, लेकिन जैसे फोर्स लगाया ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और कंटिन्यूअसली नेक्स्ट टूथ आते जा रहे हैं, दूसरे टूथ को पुश किए जा रहे हैं, तो पुशिंग हो रही है इसमें, ठीक है, तो ये गियर पावर ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे शाफ्ट पे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स हेलिकल गियर्स, दिस इज सेम एज spur gear, but there is a tooth which is not parallel to the axis, this is at an angle, and this angle is known as helix angle।
You can see. Okay, if we are going to see two gears which are helical gear, कोई भी दोनों में से एक ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर गियर हो, दोनों को हेलिकल बनना पड़ेगा। मैंने बताया ना ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको टॉप से देखूं, टॉप से, अभी हम लोगों ने कल क्लास किया है टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखना, थोड़ा इमेजिन करना सीखा है। तो अगर ऊपर से देखूं मैं तो रेक्टेंगल दिखेंगे, ये डिस्क जैसे हैं, तो एम आई राइट? यस सर। रेक्टेंगल होंगे ना, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसे दिखेंगे, एक रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा, दूसरा रेक्टेंगल इसके साथ जुड़ा है, और इस रेक्टेंगल पे इसका अपना खुद का शाफ्ट है, और इस वाले के साथ खुद का अपना शाफ्ट है, राइट। अब हेलिकल गियर्स में जो टूथ है वो एक एंगल पे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। तो जो दूसरे वाला गियर है उसका टूथ ऐसे होगा, क्योंकि इससे कांटेक्ट में लाना है, राइट। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड गियर, राइट हैंड गियर। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड गियर, लेफ्ट हैंड गियर। क्यों? क्योंकि ये राइट से स्टार्ट हो रहा है, इधर ऐसे ऊपर से राइट से स्टार्ट हो रहा है, और ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बोथ हेलिकल गियर्स मस्ट बी इन अ डिफरेंट हैंड, अपोजिट हैंड, you can see that, opposite hand. The teeth are cut in the form of the helix around the gear. Helix angle, ये helix angle है। देखिए ये ऐसे मैंने इस पे टीथ बनाया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे टीथ बना हुआ है ऐसे, तो इसका जो आप वर्टिकल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज हेलिक्स एंगल। ओके, अगर स्पर गियर का मैं बनाऊं ऐसा टॉप व्यू, स्पर गियर में कैसा बनेगा? ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, इसके शाफ्ट ऐसे हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? जो टूथ के लेंथ था वो एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल पे है। आ रही बात समझ में? अब ये बताइए, अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो ग्रेजुअल होगा या इम्पैक्ट होगा? अचानक से लगेगा या धीरे धीरे लगेगा फोर्स? जो कांटेक्ट आने वाला है वो, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये टिथ जैसे जैसे घूमेगा, ये टिथ में स्टार्टिंग में इतना कांटेक्ट है, धीरे धीरे घूमेगा तो ये कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में 0 कांटेक्ट है। अब ये देख सकते हो आप, इसमें वैसे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है इस इमेज में, कांटेक्ट ग्रेजुअली होगा, इसलिए इस वाले गियर की लाइफ ज़्यादा होती है। स्मूथ एंड क्वाइट रनिंग एट हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड। हाई स्पीड जब रिक्वायर्ड है तो इस गियर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उस हाई स्पीड पे ये गियर के टूटने के चांसेस कम होती हैं। एक्सेस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। One second. इसमें जो कांटेक्ट होगा ग्रेजुअल कांटेक्ट होगा। इसमें कांटेक्ट जो होगा ग्रेजुअल कांटेक्ट होगा। Am I audible? यस सर। Yes, sir. तो इसमें ग्रेजुअल कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? ग्रेजुअल का मतलब समझते हैं आप लोग? ग्रेजुअल का मतलब समझते हैं?
ग्रेजुअल। कोई एक रॉड है या फिर एक टेबल है, इस पे आपने अपने हाथ को रखा और धीरे धीरे प्रेस करते जा रहे हैं। अब इस पे धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे होगा। अब आपने क्या किया, अचानक से इसके ऊपर कूद गए, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग। अचानक से टूट जाए, अचानक से जब कूदोगे तो डिफ्लेक्शन एक ही बार में ज़्यादा होगा, तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे। Okay. So these type of gears are comes under in which the axes are parallel. पैरेलल भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे पैरेलल है दोनों, और नॉन पैरेलल। पैरेलल जरूरी नहीं, ये देखिए कैसे है, पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग नहीं है एक्सेस, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। इंटरसेक्टिंग है क्या? नहीं, एक्सेस इंटरसेक्टिंग नहीं है। पैरेलल नॉन पैरेलल दोनों हो सकते हैं। सो दीज आर द हेलिकल गियर्स। नेक्स्ट इज बेवल गियर्स। बेवल गियर्स में देख के आप बताइए कि इनके दोनों एक्सिस कैसे हैं? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होंगे। देखिए ये इसका शाफ्ट है और ये इसका शाफ्ट यहाँ है, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, और बनेगा कैसे? ये कोई कोन होगा, कोन के ऊपर बनाया गया है इसको, कॉनिकल शेप का डिस्क होगा। अब इसको कट कर दिया कोन को और इसके ऊपर टिथ बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे टिथ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। ओके, सो द पावर ट्रांसमिशन, इफ द पावर ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड एट 90 डिग्री, then these gears are used. As you can see that ट्रक में क्या होता है, आप लोग देखे हो ट्रक देखे हो? ट्रक का इंजन कहाँ होता है? यस सर। ट्रक का इंजन कहाँ होता है? आगे होता है इंजन यहाँ है। आप देखे हो नीचे एक शाफ्ट होती है जो ऐसे रोटेट करती है, पीछे जाती है नीचे, देखे हो कभी? यस सर। एक शाफ्ट होती है, उसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये शाफ्ट क्या कर रहा है? पावर ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम इंजन टू द पीछे वाले व्हील्स पे। आगे वाले व्हील्स पे पावर ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्रक में पुशिंग होती है, पावर को ट्रांसमिट किया गया पीछे वाले व्हील्स पे। ठीक है, अब ये सोचिए प्रोपेलर शाफ्ट ऐसे है, ठीक है, और व्हील्स कैसे हैं? यहाँ पर है। दोनों में पावर ट्रांसमिशन कैसे करना? 90 डिग्री या पैरेलल है? प्रोपेलर शाफ्ट इंजन से पावर लेके आ रहा है, पावर इन द टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उस पावर को पहुंचाना है कैसे? 90 डिग्री पे। देख रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, वो जुड़ा रहता है बड़ा सा एक स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ अंदर उसको बोलते हैं गियर बॉक्स है वो। बट वो गियर बॉक्स किस टाइप का है वो उसको कुछ और गियर बॉक्स बोलते हैं। उसमें इस टाइप के गियर्स होते हैं, दैट टाइप ऑफ गियर्स। ओके, एंड दैट गियर बॉक्स इज नोन एज डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ठीक है, देखिए ये लगा होता है ना, ये शाफ्ट दिख रहा है आपको ऊपर? ये रहा शाफ्ट। यस सर। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बता दिया है, अगर आप कई लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखेंगे आप लोग। तो यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पे 90 डिग्री पे। सो वी आर गोइंग टू यूज बेवल गियर्स। देखिए बेवल गियर्स यूज किया जा रहे हैं। ये ऐसे शाफ्ट, ऐसे गियर है और यहाँ से जो आ रहा है ये इसको रोटेट कराएगा। तो देखिए कैसे होगा इसका शेप। अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक शाफ्ट ऐसे है और दूसरी शाफ्ट ऐसे है, पावर ऐसे ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, इज इट राइट? यस सर। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करना है। ये प्रोपेलर शाफ्ट है और ये हमारे व्हील्स पे जाएंगी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी कम ज़्यादा करना है तो वो गियर की साइज पे डिपेंड करता है। कई सारे गियर लगे हैं, कैसे शिफ्ट होगा ये सब आपको नहीं जानना है अभी।
बट मैं शिफ्टिंग इन द कार, जो हम लोग पावर ट्रांसमिट करते वक्त जो गियर को शिफ्ट करते हैं, तो पावर कैसे स्पीड चेंज होती है वो मैं वो आउट ऑफ द कोर्स है, बट मैं आज बताने वाला हूँ। ओके, तो बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है, इसीलिए ये बहुत ही बड़ा होता है। आप लोग देखोगे बहुत ही बड़ा बॉक्स है ये, इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट है, बहुत सारे गियर्स हैं। ये गियर ने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट हो रहा था, इसको घुमा दिया इसने, ये बेवल गियर है, एक बड़ा बेवल गियर है, फिर अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे गियर्स हैं। इसका नाम डिफरेंशियल क्यों है, एक मैं WWH मैंने जो बताया था उसमें बताऊंगा कि इसकी ये डिफरेंशियल गियर का काम क्या है। एक्चुअल में ये पावर को ट्रांसमिट कर रहा है 90 डिग्री पे, वो तो अलग बात है, लेकिन एक दूसरा एक पर्पज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पज है। जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो वो स्किड हो जाता है हमारी गाड़ी, तो कैसे 4 व्हीलर्स में ये स्किडिंग को कैसे अवॉइड किया जाता है, इसलिए ये डिफरेंशियल गियर का काम है, डिफरेंट करना, पावर को डिफरेंशिएट करना। तो मैं इसको बताऊंगा आपको, उसमें अपने जो WWH जो हम लोग यूज करते हैं उसमें मैं दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट ये स्पाइरल गियर, ये भी हेलिकल गियर की तरह है, बट आप हेलिकल गियर में स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे स्पाइरल बने हैं, स्पाइरल शेप। ठीक है, तो अब आप जब इसका डायग्राम बनाओगे टॉप व्यू, तो ये कैसे होंगे, स्पाइरल शेप के होंगे, और ये ऐसे इससे ऐसे मैच करेगा। हेलिकल गियर और स्पाइरल गियर में क्या डिफरेंस है, जो ये टिथ बने हुए हैं हेलिकल गियर्स में क्या थे, स्ट्रेट लाइन थे। ठीक है, तो एक्सेस आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट सेम एज अ हेलिकल गियर्स, बट द टूथ आर इन अ स्पाइरल शेप, राइट। तो डायग्राम आप सोच रहे होगे, माइट बी यू आर थिंकिंग दैट हाउ वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम। नो, यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स। okay okay Yes, sir. Sir. so you can see the spiral gears how it running. So always the smaller gear running at high RPM. Next is worm and worm wheel gears. worm and worm wheel gears. worm wheel जैसे बोले मतलब व्हील जैसा होगा, तो ये वॉर्म व्हील है, और बाकी जो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है वॉर्म। फायदा क्या है, देखिए ये हमने मोटर से जोड़ दिया है, मोटर हाई स्पीड पर रन करती है, तो हाई स्पीड पर रन कर रही है। तो अच्छा ये बताइए पहले इसका एक्सिस की बात कीजिए, ये एक्सिस कैसा है और ये एक्सिस कैसा है इसका। दिस इज नॉट एक्चुअली गियर, दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्रू। स्क्रू है, ये थ्रेड बना हुआ है, इसके ऊपर थ्रेड बने हुए हैं, but it is participating in power transmission, so it can be also assumed as a drive. So what are the position of axis, perpendicular तो है but non intersecting है, perpendicular but not intersecting। आ रही बात समझ में, नॉन इंटरसेक्टिंग है। अब देखो इसका यूज कहाँ है, हमारे पास मोटर है, मेरे मोटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, मुझे आउटपुट पे बहुत ही कम स्पीड चाहिए, बहुत ही कम आउटपुट पे बहुत ही कम स्पीड चाहिए। मतलब सपोज ये 2000 आरपीएम है, इसका 2000 रोटेशन पर मिनट है, एक मिनट में 2000 बार ये रोटेट हो जाता है, बट मुझे आउटपुट पे सिर्फ एक रोटेशन चाहिए, सिर्फ एक आरपीएम। तो ये हाई रिडक्शन, हाई गियर स्पीड रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। हाई स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनको बहुत ही धीरे धीरे मूव कराना होता है, रोटेट कराना होता है, ताकि मशीनिंग की जा सके, कटिंग की जा सके। तो वो मशीन जो इसके साथ लगाएंगे वो बहुत ही धीरे धीरे रोटेट होगा। ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन टू शाफ्ट्स हैविंग द एक्सिस एट राइट एंगल बट नॉन कोप्लेनर, प्लेनर भी नहीं है, कोप्लेनर भी है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी है। मशीन टूल्स लाइक लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग एंड मशीन्स। जब भी कॉलेज खुलेगा, मैं अभी लैब विजिट बचा हुआ है, मैकेनिकल लैब विजिट वो बचा हुआ है, वो हम कराएंगे। तो देख सकते हैं आप वॉर्म व्हील कितना धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं आप। द वॉर्म इज जस्ट लाइक अ स्क्रू,
worm is just like a screw. So moving forward, rack and pinion gears. Yes. सर एक बार आपस में explain करना, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये 2000 आरपीएम पे जब ये मोटर वाला जो स्क्रू टाइप का घूम रहा है, तो ये वॉर्म व्हील इतना धीरे कैसे? वॉर्म व्हील कैसे इतना धीरे है? देखिए, ये जैसे 2000 आरपीएम का मतलब है, सपोज 1 मिनट में इसको 2000 रोटेट करना है, ठीक है। 2000 रोटेट होने का मतलब क्या है? ये कितना फास्ट आगे बढ़ता होगा, सोचो। एक रोटेशन में आगे बढ़ जाता होगा, ये वाली पोजीशन, एक वाली पोजीशन 2 पे हो जाती होगी, ठीक है। मतलब जब एक रोटेशन में ये आगे चला जा रहा है, एक रोटेशन में ये आगे जाने का मतलब क्या है? ये टूथ कितना आगे जा रहा है? बस एक बार आगे जा रहा है, इतना यहीं तक पहुंच रहा है, बस एक रोटेशन भी नहीं हुआ ना। अब जितना ज्यादा इसमें डिस्टेंस कम करोगे, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड जो बनेगा इस पे, ये जो थ्रेड बनेगा, अगर इसमें जितनी भी डिस्टेंस कम करते जाओगे तो रिडक्शन और भी कम मिलता जाएगा। उस दोनों के बीच में जितना आगे बढ़ेगा ये वॉर्म व्हील, उतना ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके एक रोटेशन होने में इसको पूरा आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे थ्रेड आगे बढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो 2000 तक इसमें रिडक्शन हो सकता है, मतलब 2000 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट इज रैक एंड पिनियन गियर्स। रैक एंड पिनियन गियर्स, पिनियन का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। पिनियन, रैक और पिनियन का गियर्स का मतलब क्या है। आप पिनियन एक टाइप का गियर ही होता है, तो ये गियर है एक, और एक रैक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कहाँ है, कितना है? इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट, ठीक है। रैक इज अ रेक्टेंगुलर बार कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट टीथ। स्ट्रेट टीथ है इसमें। रैक इज ए स्पर गियर्स इनफाइनाइट डायमीटर। डायमीटर रेडियस क्या है? इनफाइनाइट है। रैक इज अ स्पर गियर्स, स्पर गियर है ये। रैक इज मैश विद अनदर स्मॉलर गियर नोन एज अ पिनियन। स्मॉलर गियर नोन एज पिनियन। अब ये बताइए इसका यूज कहां पर है? ये रोटेट होगा तो ये कहां जाएगा? ये आगे पीछे होगा। अगर सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो रैक किधर जाएगा? राइट और लेफ्ट। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो रैक लेफ्ट राइट में जाएगा या लेफ्ट में? सर राइट। राइट में, ठीक है, राइट में जाएगा। इसका यूज कहाँ हो रहा है? यहाँ रोटेशन है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रोटेशन मोशन है और यहाँ पे लीनियर मोशन है। कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, ओके। दिस इज आल्सो यूज इन द लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, प्लानिंग मशीन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और सबसे बड़ा यूज मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। द रैक और पिनियन का सबसे बड़ा यूज कहाँ है? आप देख सकते हैं, ये जब क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो ये लेफ्ट में जा रहा है। इधर से देख रहे हैं तो, उधर से देखोगे तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, और ये राइट में जा रहा होगा। नेक्स्ट सर ये एलिवेटर्स में काम आता है क्या? क्या बेटा? सर ये एलिवेटर्स में काम आता है क्या? एलिवेटर्स, यस यू आर राइट। एलिवेटर्स में यही काम आता है। एस्केलेटर्स होते हैं स्वचालित सीढ़ियां, ओके। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग सिस्टम यही है। जहाँ पे रैक रखा गया है, ये रैक। कुछ बच्चे बिजी हैं, बताइए घर में। बच्चों म्यूट कर लो। अपूर्वा, यस सर। म्यूट कीजिए आप। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में भी ये यूज किया जाता है। स्टीयरिंग में कैसे? ये आप ये रोटेट करा रहे हो, ये शाफ्ट पूरी रोटेट हो रही है। इस शाफ्ट की वजह से यहाँ पे एक पिनियन है, पिनियन गियर है। ये पिनियन गियर भी उसी फैशन में रोटेट हो रहा है। और उसके नीचे कौन रखा गया है? रैक। ये रैक है। अब ये रैक इधर जाएगा तो इसको पुश करेगा तो टायर कैसे घूम जाएगा? ऐसे।
ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. So it is used in steering system of the vehicle, four wheeler, not two wheeler. Okay, so now you are going to from now you are going to write something in your notes. Module, gear ratio and speed ratio. Module, gear ratio and speed ratio. सर Yes. सर ना फिर मतलब शाफ्ट को तो धीरे धीरे घुमाते हैं तो फिर भी तो मतलब अगर फोर व्हीलर तो फिर फास्ट चलती है मतलब इसको शाफ्ट को धीरे धीरे घुमाते हैं। शाफ्ट मतलब कि वो स्टीयरिंग को अपन तो धीरे घुमाते हैं ना सर, तो फिर शाफ्ट भी धीरे ही रोटेट होएगी। हाँ, तो फिर नीचे फिर ये रैक और ये पिनियन ये भी धीरे धीरे चलेंगे फिर तो टायर को तो घुमाना है ना, टायर को दौड़ाना नहीं है, घुमाना है। स्टीयरिंग क्या काम करता है? लेफ्ट राइट करता है ना गाड़ी को, तो थोड़ा सा ही घुमाना होता है ना। यहाँ पे स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग में क्या होता है? क्या पावर स्टीयरिंग में सर? पावर स्टीयरिंग में, पावर स्टीयरिंग पंप हाइड्रोलिक पंप पे काम करता है, हाइड्रोलिक होते हैं उसमें। तो पावर स्टीयरिंग में क्या होता है? प्रेशर से चलता है ये रैक, आगे पीछे प्रेशर से, हाइड्रोलिक प्रेशर से। ये देख रहे हैं आप, ये गया हुआ है, ये जो इसमें फ्लो कराया जाएगा लिक्विड को, वो लिक्विड इसमें प्रेशर देगा, प्रेशर की वजह से ये पुश होगा स्टीयरिंग। तो आप लोग पावर स्टीयरिंग पता होगा कि जब आप गाड़ी खड़ी रहती है तो भी घुमा सकते हैं आप व्हील्स को, लेफ्ट या राइट। पावर स्टीयरिंग का ये फायदा है। तो वहां पे जो आप स्टीयरिंग से जब तब ये क्या होगा, यहाँ से जब पुश करते हैं, ये पुश होता रहता है, ये पुश हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा भी पुश करोगे इसको, पिनियन को, रैक को इधर इधर की तरफ शिफ्ट कराना चाहोगे अपनी स्टीयरिंग से, तो ये उसमें से एक्स्ट्रा पावर देगा। कौन? पंप, स्टीयरिंग पंप, जहां से लिक्विड जाएगा उसको पुश करेगा। ठीक है, जब गाड़ी स्टेशनरी रहती है, खड़ी रहती है, उस समय आप स्टीयरिंग को घुमा नहीं सकते हो, सॉरी व्हील्स को घुमा नहीं सकते हो थ्रू स्टीयरिंग। ओके, आपको पता है कि स्टीयरिंग हमने पूरा घुमा दिया, लेकिन व्हील्स तो पूरा नहीं घूमता है, पता है यस सर। Yes, sir. क्यों? स्लो रोटेट करता हूँ। तो स्टीयरिंग रेशियो होता है बेटा, स्टीयरिंग रेशियो होता है। तो इस ऐसी डिजाइन की गई है, ऐसी यहाँ पे ज्योमेट्री सेट की गई है कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इसको 15 डिग्री घुमाते हो तो ये कितना घूमेगा? ये 1 डिग्री घूमेगा बस। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं 15:1, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग रेशियो। ठीक है, एनी डाउट? No, sir. अब आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल, इट इज द रेशियो ऑफ डायामीटर, डायामीटर को फाई से लिखते हैं, डायामीटर एंड नंबर ऑफ टिथ ऑन द गियर and pinion. Sorry, only gears, but ध्यान रहे diameter must be in mm, must be in mm. Second point for the module same is module for two meshing gears, meshing gears must be same for smooth power transmission. नोट कर रहे हैं?
Module is the ratio of diameter and the number of teeth on the gear. Okay. अब मैं एक छोटा सा डेफिनेशन नहीं है, आपको यहीं से डायग्राम से समझना है। एक गियर है छोटा सा और दूसरा गियर है बड़ा सा, ठीक है। पहला है ये ड्राइवर DVR और ये DVN, ओके। एक ड्राइवर है और एक DVN है। छोटा कौन सा है? DVR। अब क्या है, हम लोग जब भी अब गियर की बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 गियर को तो एक साथ पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दोनों को गियर बोलना सही नहीं है। इसलिए जो छोटा वाला गियर है उसका नाम बदल दिया गया है, तो गियर है वो, लेकिन नाम बदल दिया गया। छोटे वाले गियर का नाम हो गया, जो स्मॉलर वन इज ऑलवेज नोन एज पिनियन एंड बिगर वन इज ऑलवेज नोन एज गियर। गियर तो है ही, बट एक का नाम बदला हमने, तो अपने आप डिफरेंशिएट हो गया। तो ध्यान रहे, छोटे का नाम क्या है? पिनियन। बड़े का नाम क्या है? गियर। अब वो ड्राइवर हो सकता है, वो ड्रिवन हो सकता है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम पिनियन टू गियर और गियर टू पिनियन। इट इज डिपेंडिंग अपॉन, नाम जो बदला गया है वो साइज के हिसाब से, जो बड़ा होगा वो गियर, जो छोटा होगा वो पिनियन। अब आप सोचेंगे दोनों बराबर होगा तो क्या करेंगे? बराबर होगा तो दोनों का नाम गियर होगा, पिनियन नहीं रखेंगे। ठीक है। अब मैंने जो दूसरा पॉइंट बोला है, सॉरी, पहला पॉइंट क्या है, मतलब मॉड्यूल का मतलब क्या है? मॉड्यूल इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। कैपिटल में ही कर लेते हैं। कैपिटल में इसलिए नहीं कर रहा था, टेम्परेचर समझने ना लगे कुछ लोग। कैपिटल D डिवाइडेड बाई T, और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? mm। नंबर ऑफ टीथ का कोई यूनिट नहीं होगा, mm है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है? मॉड्यूल फॉर 2 मैशिंग गियर्स। ये दोनों मैशिंग है एक दूसरे से, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, दोनों मैशिंग गियर्स हैं। तो इसका जो m होगा m1, वो इसके m2 के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट m1 इज इक्वल्स टू m2, ओके। दैट मीन्स d2 अपॉन t2 इक्वल्स टू d1 अपॉन t1। And now we are going to write d2 upon d1 will be t2 upon t1। जो डायमीटर बड़ा है, अगर बड़ा है जो, उसका नंबर ऑफ टीथ उस पर ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है कि नहीं? Yes, sir. Okay, and you have understood that which is having a diameter, more diameter, it will have lesser speed. Okay, so diameter is directly proportional to 1 upon speed, right? नोट कीजिए अभी यहां तक। m1 इक्वल्स टू m2 नहीं बोलेंगे, हो गया। नोटेड? Yes, sir. Okay, so diameter is directly proportional to 1 upon n. मतलब d1 upon d2 can be written as n2 upon n1. Is it fine? सही है? And from module we are getting that t1 upon t2. So these relation must be learned. You must learn these formulas. Okay. So now, what is gear ratio and what is speed ratio?
देखिए स्पीड रेशियो और गियर रेशियो में क्या अंतर है। देखिए एक गियर ऐसा है, एक छोटा सा गियर है, ये इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट पे गियर लगा हुआ है और ये आउटपुट शाफ्ट पे गियर लगा हुआ है, ठीक है। अब कौन सा गियर बड़ा है, ये गियर है और ये पिनियन है, पी, ओके। सो गियर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गियर रेशियो इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और मैं यहाँ पे गियर लिख रहा हूँ और ये पिनियन लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। गियर रेशियो इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, स्पीड रेशियो इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, ओके। चलिए इसको जी आर लिख लेते हैं, इसको स्पीड रेशियो को एस आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से जी आर और एस आर में क्या रिलेशन है और आप लोग डेफिनेशन बताओगे। जी आर इक्वल्स टू डी जी अपॉन डी पी, G for gear, P for pinion, and SR equals to N output upon N input। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है। Gear ratio must be always greater than 1. This could be anything. Speed ratio can be anything. Less than 1 can be greater than 1. Greater than 1 can be less than 1. एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। मतलब गियर रेशियो क्या है, बड़ा गियर का साइज डिवाइडेड बाय छोटे गियर का साइज, मतलब गियर अपॉन पिनियन का डायामीटर का रेशियो है, ठीक है। अब डायामीटर का रेशियो जब पता है आपको, तो आप इसको स्पीड के रेशियो में भी लिख सकते हो, जस्ट अपोजिट, NP अपॉन NG। अब किसी को भी समझना है पूछिएगा। इसको फिर से टिथ के टर्म में भी लिख सकते हो, TG अपॉन PP, ठीक है। जिसको समझ में ना आए प्लीज पूछिएगा मुझे। आप लोगों का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो रेजिंग योर हैंड इट कैन नॉट बी विजिबल टू मी। You must ask, just unmute yourself and ask. Speed ratio is always output speed upon input speed. Driven speed upon driver speed, always. Okay? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर ये थोड़ा फिर से बता दें। कौन सा? सर इसमें स्पीड रेशियो और गियर रेशियो में फिर बीजी अपॉन ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट गियर रेशियो इज डिफाइंड यूजिंग द साइज ऑफ द गियर्स, ओके। द साइज ऑफ द गियर्स, आपको मैं बता रहा हूँ, गियर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गियर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ज्यादा कब हो सकता है, जब आप गियर वाले का डायमीटर डिवाइडेड बाय पिनियन का डायमीटर लिखोगे तभी तो एक से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमको ये डायामीटर का रेशियो स्पीड के रेशियो में भी पता है, तो NP अपॉन NG जस्ट अपोजिट होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और डायामीटर और टिथ में सेम रिलेशन है, तो G ऊपर है नीचे P है, G ऊपर है नीचे P है। अब स्पीड रेशियो आपको मैंने बता रहा हूँ कि ये होता है आउटपुट स्पीड अपॉन इनपुट स्पीड। तो आउटपुट स्पीड कितना है, N आउट। N आउट मतलब पिनियन का स्पीड। यहाँ पे एग्जांपल है पिनियन का स्पीड, तो पिनियन नहीं लिखना है यहाँ पे लिखना है D ऑफ द ड्राइवर, सॉरी ड्रिवन अपॉन D ऑफ द ड्राइवर। अब ये पिनियन भी हो सकता है, ये गियर भी हो सकता है। आपको समझ में आया ये बात? सर स्पीड रेशियो वाले समझ में नहीं आया सर, एक बार आप स्पीड रेशियो नहीं समझ में आया? चलिए समझते हैं फिर से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये गियर है, दूसरा गियर और भी बड़ा सा है, एक और गियर है और एक और बड़ा सा गियर है, ठीक है। 1 2 3 4। अब आप लोग थोड़ा रोटेशन बताइएगा कैसे होगा। सपोज मैं पहले वाले गियर को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो ये कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी बताइए
M1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 गियर है ना, तो 4 मॉड्यूल होंगे। रिलेशन बताइए क्या क्या होगा। इक्वल होंगे। M2 होगा या M2 = M3 या M3 = M4? M1 M2 M3 M4 इक्वल होंगे। यहाँ से देखिएगा मैशिंग कहाँ हो रहा है, मैशिंग ये हो रहा है, मैशिंग यहाँ हो रहा है और मैशिंग यहाँ हो रहा है। तो जहाँ मैशिंग हो रहा है वहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। M1 = M2 होगा, ठीक है। M2 = M3 होगा, M3 = M4 होगा। ये अलग बात है कि सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो सब बराबर हो गए। M1 = M4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड होगी N4 और यहाँ पे इसकी स्पीड होगी N1, सही है। यस सर। तो Yes, sir. ये है ड्राइवर और ये है ड्रिवन। ड्राइवर और ड्रिवन बोलो या इनपुट या आउटपुट बोलो, बात एक ही है। अगर आप सिर्फ इन दोनों गियर की बात करोगे तो ड्रिवन कौन है, ये वाला ड्रिवन है और ये ड्राइवर है। अब आप 2 और 3 की बात करोगे तो कौन ड्राइवर है, 2 ड्राइवर है, 3 ड्रिवन है। 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 ड्राइवर है, 4 ड्रिवन है। बट ओवरऑल सिस्टम की बात की जाए तो ड्राइवर कौन है, फर्स्ट, एंड ड्रिवन कौन है, लास्ट। ओके, सो यहाँ पे स्पीड रेशियो क्या होगा, N4/N1। अब समझ में आ जाए स्पीड रेशियो क्या है। यस सर। यस सर। ठीक है, गियर रेशियो क्या कितना होगा, गियर रेशियो कितना होगा। गियर रेशियो पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं है, पहले और दूसरे के लिए डिफाइन है गियर रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूं, G12 कितना होगा गियर रेशियो, G1/G2। अगर मतलब अभी यहाँ पे साइज तो दिया नहीं है तो कैसे निकाल पाएंगे। सपोज ये दूसरा बड़ा है तो D2/D1। अगर मैं G23 की बात करूं तो 3 वाला छोटा है तो D2/D2, D2/D3। ठीक है। अब ये 3 और 4 की बात की जाए तो D4/D3, ठीक है। तो मतलब गियर रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा रखना है। ओके, यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलिए अब पावर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये पहला जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, पहला ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें ये जो पहला पार्ट है ये है इंजन। आईसी इंजन हम लोगों ने पढ़ रखा है। पावर कहाँ तक मिल चुकी है, क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, आफ्टर दैट वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज अ वन कंपोनेंट दैट इज नोन एज फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू रिस्टोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजन टू यूज फॉर 3 अदर स्ट्रोक्स। पावर स्ट्रोक में हमें इंजन एनर्जी मिल गई थी, बहुत ही ज़्यादा थी, उससे हमने अपनी गाड़ी को तो चला लिया, लेकिन बाकी जो 3 स्ट्रोक हैं, जो आइडल स्ट्रोक हैं जिसमें हमको पावर देनी है, वो कहाँ से लेते हैं, फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील बहुत ही बड़ा सा एक डिस्क है जो रोटेट करता रह रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। जब पावर मिल जाता है, जब पावर की जरूरत है, तो ये उल्टा ये क्रैंक शाफ्ट में पावर देता है और इस क्रैंक शाफ्ट से ही फिर से पिस्टन नीचे आती है, सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर पावर स्ट्रोक मिलती है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी पावर फ्लाईव्हील से ही मिलता है। अब ये फ्लाईव्हील किससे जुड़ा हुआ है, क्लच से। क्लच आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्लच लगाने से क्या हो जाता है, गाड़ी फ्री हो जाती है। क्लच आप जैसे ही दबाते हो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। फ्री होने का मतलब क्या है, फ्री होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लच। आप दबाते हो तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सर गियर फ्री हो जाती है। एग्जैक्टली, ये क्लच है। क्लच किससे जुड़ा हुआ है, फ्लाईव्हील से। अब ये दोनों के बीच में कांटेक्ट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है। फ्रिक्शन है तो ही कांटेक्ट है, फ्रिक्शन कम होता जाता है तो क्लच खराब हो जाती है, बदलने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोनों में जो कांटेक्ट हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये डिस्क पे बहुत सारे फ्रिक्शन के एलिमेंट्स लगाए जाते हैं ताकि दोनों के बीच में कांटेक्ट बहुत ही अच्छे से बना रहे। लेकिन जैसे आप क्लच को प्रेस करते हो तो क्या होता है, क्लच को जैसे प्रेस करते हो ये क्लच शिफ्ट हो जाता है दूर, ठीक है।
डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम गियर बॉक्स टू द इंजन। अब इंजन तो घूम रहा है लेकिन गाड़ी नहीं घूम रही है, गाड़ी फ्री है। जब तक उसके पास अपना मोमेंटम है तभी तक चलेगा, राइट? यस सर। ठीक है। अब ये आपको शाफ्ट है जो गियर बॉक्स में जा रही है, और ये पावर है जो व्हील्स पे जा रही है। अब यहाँ से और यहाँ से, अब ये सबका इंजन से कनेक्शन है। फ्लाई व्हील भी उसी स्पीड से चल रही है जितना पे इंजन का क्रैंकशाफ्ट चल रहा है। अब ये जब क्लच इसके साथ आएगा, क्लच भी उसी स्पीड से चलेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पीड सपोज मैं 2000 आरपीएम मान लेता हूँ, इसकी स्पीड है इनपुट पे कितना है 2000। अब यहाँ पे व्हील्स पे हमको स्पीड चेंज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट गियर्स, G1 G2 G3, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, रिवर्स गियर। ये सारा कुछ किससे होगा? गियर बॉक्स से। ठीक है, इसमें चेंजिंग की जाएगी, गियर्स इसमें लगाए गए हैं। अब गियर कैसे लगाए गए हैं, कैसे शिफ्टिंग की जाती है, शिफ्टिंग करने से क्या होता है, ये जब आप गियर बॉक्स को ओपन करोगे तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्लच है, और ये इसमें लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के गियर्स। ओके, तो आपको जो शाफ्ट दिख रहा होगा, एक ये शाफ्ट है और एक ये शाफ्ट है। एक होता है लाइन शाफ्ट और एक होता है काउंटर शाफ्ट। अभी आगे दिखेगा आपको एक लाइन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपको मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसके लिए मैं वीडियो भी इसमें यूट्यूब पे वीडियो है, उसका लिंक मैंने दिया, उसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा यूजिंग द डायग्राम्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल means how this shifting of gears happen. Okay, so before that I need to clear you that देखिए एक शाफ्ट है ऐसा, इस पे गियर लगा हुआ है। चलिए ऐसे नहीं बनाते हैं, एक शाफ्ट ऐसा है, एक गियर ऐसा है। इस शाफ्ट से इस शाफ्ट के साथ इस गियर के साथ दूसरा गियर कांटेक्ट में आया। ठीक है, इसका अपना अलग शाफ्ट है। ठीक है, इस शाफ्ट पे एक और गियर है, इस शाफ्ट पे एक और गियर है। ठीक, अब इस गियर के साथ दूसरा गियर कांटेक्ट में आ रहा है जो कि दूसरे वाले शाफ्ट के पे है, इस वाले शाफ्ट पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। अब बताइए मैशिंग कहाँ पे हो रही है? ये गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4। मैशिंग कहाँ पे हो रही है? किसके किसके साथ हो रही है मैशिंग? यहाँ से पावर आया है, सपोज ये 1000 न्यूटन का पावर, आरपीएम का पावर है, पावर मतलब स्पीड है, 1000 आरपीएम का स्पीड है आपके पास है। अब ये कनेक्शन जैसे जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से स्पीड क्या क्या हो जाएंगी, 1 की, N1, N2, N3, N4। इस पे टिथ है, इस पे टिथ है 100, नंबर ऑफ टिथ 100 है, इस पे नंबर ऑफ टिथ 50 है, इस पे 150 है और इस पे 40 है नंबर ऑफ टिथ। उसके हिसाब से N1 तो आपको पता है कितने से घूम रहा है, बोलो भाई? 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम। 1000। 1000 आरपीएम। ये शाफ्ट है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। वन सेकेंड, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। और 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है पहला गियर, राइट? ये कितना है? 1000। T1 कितना है? 100। ओके, अब ये बताइए 50 जो सेकंड गियर है उसकी स्पीड क्या होगी? सेकंड जो गियर है उसकी स्पीड क्या होगी? बताओ। सर 2000 आ रही है।
2000 rpm because number of teeth on the second gear is half, so speed will be double. Okay, n2 will be 500. अभी आप निकाल सकते हो ऐसे n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1 निकाल सकते हो इससे. ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब मैशिंग हो रही हो उस गियर में. ये फॉर्मूला 1 और 3 के साथ नहीं लगा सकते हो. ठीक है. अब ये बताइए 2 और 4 में स्पीड किसकी ज्यादा होगी? 2 की 10 ओके. किसकी 2 की किसकी ज्यादा होगी? 2 की. ओके. 2 की ज्यादा होगी क्योंकि छोटा है. बेटा छोटा है बड़ा है, इससे स्पीड ज्यादा या कम होगी वो तब होगा ना जो दोनों कांटेक्ट में होंगे. दोनों मैश कर रहे हैं क्या? देखिए एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट पे 2 गियर लगे हुए हैं. एक पुल्ली ये है, दूसरी पुल्ली ये है, और ये शाफ्ट को मैं रोटेट करा रहा हूं किसी भी तरीके से. तो दोनों पुल्ली का स्पीड तो सेम होगा ना. एक ही शाफ्ट के दोनों. So N2 equals to N4 because both are at same shaft, same line shaft. लाइन है, एक लाइन में है, सेम लाइन शाफ्ट. ठीक है. सर n2 2000 नहीं होगा? N2 will be 2000 राइट. हाँ ये गलती हो गया. 2000 होगा, डबल हो जाएगा ना. N4 2000 होगा, ये सबको समझ में आ गया. सेम शाफ्ट पे हैं. N3 बताइए. अब 4 और 3 दोनों मैशिंग में हैं, तो आप फार्मूला लगा सकते हो. N3 अपॉन N4 इक्वल्स टू T4 अपॉन T3. ठीक है. निकालना क्या हमको? N3 इक्वल्स टू N4 मल्टीप्लाई बाई T4 अपॉन T3. N4 is comes out 2000 मल्टीप्लाई बाई T4 कितना है? 150. T3 कितना है? 40. निकालिए इसको, कितना आएगा? N3 कितना आएगा? सर 7500. 7500 आरपीएम. अब देख रहे हैं आप लोग स्पीड बढ़ गई यहाँ पे आउटपुट पे. आउटपुट शाफ्ट है ये इनपुट शाफ्ट था. 1000 आरपीएम था. ये छोटा गियर लगा दिया यहाँ पे. स्पीड कितनी हो गई? 7500. 1000 से 7500 हो गया. ठीक है. Yes sir. So this is the main principle of how gear shifting occurs and how the speed has changes. तो वही पूरा मेथड है इसमें. हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमको शिफ्ट जो करते हैं हम लोग शिफ्ट क्या करते हैं, इस पे और भी सारे दूसरे गियर्स होंगे. हम क्या करेंगे, इस वाले गियर को या दूसरे गियर को इसके ऊपर लगा देंगे. इसके ऊपर लगा देंगे तो कुछ और स्पीड होगा. शिफ्ट करते रहते हैं. जो आप लीवर घुमाते हैं, 0 न्यूट्रल 1 2 3 जो लीवर घुमाते हैं, उसका काम सिर्फ यह है कि किसके साथ कौन से गियर को अटैच करना है. ठीक है. बहुत ही सिंपल सा है ये. जैसे फर्स्ट स्पीड गियर है. जैसे देखिए यहाँ पे हमको पावर मिली, इस पावर को हमने इसमें ट्रांसफर किया, तो ये पूरा काउंटर शाफ्ट है. एक पूरा काउंटर शाफ्ट है. सबकी सारे गियर की स्पीड सेम होगी. अब इस छोटे वाले गियर को किसी बड़े वाले गियर को दे दिया तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं? यस. सही है. यहाँ पे स्पीड मान लीजिए 1000 था, 1000 आरपीएम है, तो 1000 आरपीएम यहाँ पे आया तो ये बड़ा गियर के साथ आ गया, तो बड़ा गियर है तो 500 हो गया. मान लीजिए 500 आरपीएम इसका भी होगा, इसका भी 500 क्योंकि सेम शाफ्ट पे है, इसका भी 500 होगा. ठीक है. और 500 को और भी बड़े गियर के साथ मैशिंग कर दी गई. ये वाला गियर बड़ा है तो 500 से और भी कम हो जाएगा. ये सपोज 100 हो गया. ठीक है. तो फर्स्ट गियर में बहुत ही कम स्पीड मिलती है.
ठीक है। सेकंड गियर में देखिए, सेकंड गियर में क्या किया गया, उससे छोटे वाले गियर से जोड़ दिया गया। ये तो सेम है, यहाँ तक तो 500 ही मिल रहा था, लेकिन इस वाले गियर से छोटा गियर है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड मिलेगा, सपोज 200 आरपीएम। आ रही बात समझ में? शिफ्टिंग की जाती है, आप जो शिफ्ट कर रहे हो वो यहाँ पे काम हो रहा है, गियर को कैसे एक दूसरे के ऊपर मैश किया जा रहा है। ठीक है। अब रिवर्स गियर, जैसे थर्ड गियर है, थर्ड गियर में क्या किया गया, और भी छोटे वाले गियर से जोड़ दिया गया। देख रहे हैं, इस वाले गियर से जोड़ दिया गया। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है। रिवर्स गियर में क्या होता है, देखिए रिवर्स गियर मतलब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, अगर यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज है, ये कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा, दूसरा ये वाला। दूसरा गियर जो उसके साथ मैचिंग में है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर पहले वाले का क्लॉकवाइज है तो इसका कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको इसके साथ जोड़ दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब इंजन का जो शाफ्ट था जैसा रोटेट करेगा वो आउटपुट पे भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो सपोज गाड़ी आगे चल रही होगी, इस तरह के रोटेशन से सपोज गाड़ी आगे चल रही होगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा गियर लगा दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, इसको एनलार्ज कर रहा हूँ इस वाले चीज़ को। ये हमारा इनपुट गियर था, ये आउटपुट गियर था, इस पे शाफ्ट पे बहुत सारे गियर लगे हुए हैं। ध्यान से देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये लास्ट में ये गियर लगा हुआ था, सेम स्पीड है इसकी भी और इसकी 500, सपोज 500 था, 500 आरपीएम। अब हमने क्या किया, इस पे एक और गियर लगा दिया छोटा सा, फिर जाके इस पे जो एक गियर है फर्स्ट वाला गियर बड़ा वाला, उसको लगा दिया। अब ये बताइए, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया था, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला गियर कैसे घूमेगा फिर? क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसको कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। हो गया रिवर्स, यस सर। हो गया ना रिवर्स। तो रिवर्स में Yes, यही sir. सिस्टम है। अब ये क्लॉकवाइज मतलब मान लो मेरी इंजन का तो रोटेशन चेंज नहीं कर सकते ना, इंजन क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है लेकिन गाड़ी को पीछे जाना है, तो बीच में छोटा वाला गियर काम में आता है। ठीक है। और स्पीड रिवर्स गियर की कम होती है, फर्स्ट गियर के बराबर ही होती है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाले गियर के साथ ही जोड़ा गया। देखिए ये फर्स्ट गियर था, ये फर्स्ट गियर था बड़ा। समझ में आ गया ये सब? अब ये लिंक मैं आपको इस नोट्स के साथ दे दूंगा, ये वीडियो अगर आप और भी देख लोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा ये। आई थिंक इतना सब क्लियर ही था। Am I right? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, थैंक यू कि समझ में आ गया और आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So in the next class we will go forward for the what we say belt drive. Belt drive ये पूरे आपके बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट अटेंडेंस के लिए बोला नहीं मैंने, अटेंडेंस देने लगे, चलो ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस पर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव को। ओके, तो अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग। अटेंडेंस जिसका एक ही बार देना है, अटेंडेंस ध्यान रहे, एक ही बार देना है अटेंडेंस। Thank you, sir. ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.